Good morning and welcome everyone. I'm Jatin Verma. Welcome to Daily News Analysis, guys. In today's Daily News Analysis, Good morning and welcome everyone to the Daily News Analysis for 1st of April 2020. In today's Daily News Analysis, we are going to talk about these news articles. Government cuts interest rate on NSC and PPF. In the light of a deal between USA and Russia, US crude oil prices are seen to be declining. So this is the second shock to the crude oil prices, even as the Russia and Saudi Arabia try to capture the crude oil market. So ये चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में आज कवर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 70 years of diplomatic relationship between India and China. Then officials of Tablighi Jamaat charged with defying restrictions. So Epidemic Act के अंदर जो restrictions हैं इस जमात के लोगों ने जो वॉलेट करी है उनके लिए इनको जो है penalize किया जा सकता है इनको because they have defied the restrictions, so there will be some criminal proceedings against them. Andaman and Nicobar tribes under heavy security in the light of coronavirus outbreak. 9 people from the Muslim congregation in which more than 1,000 people had gathered. उससे related ये news article है जो आपने कल भी हमने थोड़ा सा cover किया था इसमें. So coming here, I would like to tell you about my courses on Unacademy. You can use this code, referral code JatinYT71 while joining any of the courses while going for the Unacademy subscription. These are my courses which are specifically for Prelims 2020. Indian Polity and Governance, Indian Economy for UPSC CSE, Current Affairs Roundup 365. Then GS Mains Paper 3, Disaster Management and Economy. So this is the way to apply for the subscription. UPSC CSE is the category. You have to choose if you are a UPSC aspirant. If you are going for SSC and other subscription, you have to accordingly change it from the drop down menu. तो जैसे ही आप get subscription पे click करेंगे, you will get access to these features of the Unacademy Plus. Daily live classes जैसे कि हम देखते हैं कि special classes होते हैं, simply वैसे ही ditto वैसे ही आपकी special classes की तरह लाइव क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी पे. और कोर्सेज, माय कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट यू विल गेट एक्सेस टू फैक्चुअल प्लस analytical content. If you are preparing for 2021, already the courses which are there for 2021 have been launched. 15th of April onwards, my course on Indian Polity and Governance will also start. And if in case you face any problem in joining Unacademy Plus, you can reach out to me on this number through WhatsApp only. Me and my team will be there to help you. 9582868080 पे आप contact कर सकते हैं. If in case while joining Unacademy Plus you encounter any problem. Now, unlimited access to the courses will be there. One subscription gets you the access to all our live and recorded courses. Not only my courses but other educators' courses as well. So this is where you have to apply the code JatinYT71 to get 10% discount on your subscription fee. Then you can accordingly choose 1 month, 3 months, 6 months. Ordinarily people choose 12 months, so you can decide for yourselves. Now coming to the courses, then you will get access to, once you join the subscription, you get access to all my courses on Unacademy Plus. Now coming here to the analysis, guys, these are the editorials. Step up. This is related to the coronavirus only. Then an eye each on containment and welfare. How to strike a balance between containment of coronavirus and at the same time not losing the sight of welfareistic steps that the government is required to take. Beyond social distancing to fight coronavirus 19, COVID-19. Then step up. Citizens must not hide their travel or contact history as authorities deal with the pandemic. The strongest weapon that one can unleash against this pandemic is with every individual. Keeping health authorities in the loop could make the difference between life and death. Keeping health authorities. हमारी कंट्री में ये हो रहा है कि जो लोग फॉरेन ट्रेवल करके आए हैं वो अपनी हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल spread the pandemic to the community level. Individuals volunteering information will help the central. Individuals volunteering their own information will help the central and the state governments
narrow down on the cluster cases. Narrow down on the cluster cases centered around तबलीगी जमात कॉन्फ्रेंस इन निजामुद्दीन दिल्ली. अब निजामुद्दीन दिल्ली में 1000 से ज़्यादा मुस्लिम्स का ये कॉन्ग्रीगेशन रहा था, जिसमें कि ये लोग एपिडेमिक एक्ट को डिफाई करते हुए, एपिडेमिक एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए, बिल्कुल दरकिनार करते हुए, दे हैड गैदर्ड and these 1000 people went to different parts of India after the congregation ended, thereby carrying the virus with them. 233 out of them have been tested positive with coronavirus, and that is why the authorities in various parts of India, they are searching for the remaining people who were a part of this congregation, ताकि ये कोरोना वायरस और लोगों में नहीं फैलाएं. The spread of the cases from this one spot, which reportedly had several foreign nationals who later tested positive, and wherein 6 among those who attended died, had emerged as a key milestone in India's management of the epidemic. It is time to insist that अब वो टाइम है कि जब हम ये इंसिस्ट कर सकते हैं that every individual respond responsibly during this time, and only expectation is to inform the authorities of relevant history of travel, stay in quarantine even if asymptomatic, follow all the protocols. अगर symptoms नहीं भी हैं तो खासकर ये जो लोग हैं इनको अभी के लिए क्वारंटीन रहना चाहिए, बाकी लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहिए, so that the government's efforts to contain the disease at level 1 itself are successful. Now coming to economy related articles, first of all, government cuts the interest rate on NSC PPF. Government ने NSC और PPF पे interest rate में कटौती की है. Government has slashed the interest rates on these schemes by up to 1.4% for the first quarter of 2021, in line with the moderation in the bank deposit rates. Reduction in the rates, interest rates for small saving schemes are notified on a quarterly basis. Small saving schemes पे interest rates quarterly basis पे हर 3 महीने में एक बार रिवाइज किए जाते हैं. With the reduction, the term deposits of 1 to 3 years will now fetch an interest of 5.5% from existing 6.9%, down 1.4. यानी कि अभी जो interest rate 6.9% है वो interest rate NSC और Public Provident Fund पे 5.5% हो जाएगा. Interest rates are paid quarterly, while the 5-year term deposit will earn 6.7% interest, down from the current rate of 7.7%. National Saving Certificate is a tax saving investment. That means जो भी पैसा आपके पेरेंट्स या कॉमन पीपल जो इन्वेस्टर्स हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, that is eligible for Section 80C deduction under Income Tax Act. That means if a person's income is, let's say, 10 lakh rupees, and if he deposits 1 lakh rupees into National Saving Certificate, on which he will get interest, so he will have to pay tax on the remaining amount only, and not the amount which he has invested in PPF, Public Provident Fund, or 1 lakh. So that is why people are interested in investing in these securities, because these are eligible securities under Income Tax Act 1961, right? तो जो सिक्योरिटीज इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एलिजिबल हैं, वो सिक्योरिटीज यहाँ पे अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो सभी चीज़ें, उसमें जो प्रीमियम पे किया जाता है या जो पैसा प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, वो पैसा एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाता है. उसके बाद बचती है नेट टैक्सेबल इनकम, जिसपे डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है. बीइंग अ फिक्स्ड रिटर्न and low risk Government of India backed investment, NSC is usually preferred by risk averse investors. NSC में वो लोग पैसा लगाते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते, those people will invest in these type of certificates, or those seeking to diversify their portfolio through the fixed return instrument. Portfolio होता है mix up of different types of investments. आप पोर्टफोलियो में कहीं पे इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं जो कि रिस्की होता है, फिर साथ साथ आप ये भी चाहेंगे कि
पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, जिन पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, क्योंकि इक्विटी पे तो जो रिटर्न है वो ऊपर या नीचे कब होगी, दिस इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, इसीलिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में लोग पैसा लगाते हैं। तो जब हम ऐसी मिक्सचर ऑफ सिक्योरिटीज को, म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को परचेज करते हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो हियर, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। So features of National Saving Certificate, the interest earned is not subject to any TDS deduction. तो इसमें जो interest है उसमें कोई tax deducted at source नहीं होता. That means the person will get the full amount. Then NSC can be purchased at any post office in India. NSC National Saving Certificate आप लोगों ने I'm sure अपने घर में देखा होगा कि ये NSC certificate रहता है. तो maturity period of NSC certificate is 5 years. But the interest rate is revised periodically by the Government of India. इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, कुछ कुछ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिक्योरिटी चूज करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर आप ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट पीरियोडिकली मिले तो इंटरेस्ट पीरियोडिकली मिलता रहेगा, अगर आप ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट 5 years के बाद मिले तो इसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट, क्यूमुलेटिव नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। Then minimum investment of the amount is only 100 rupees. 100 rupees से लेकर किसी भी अमाउंट तक कोई भी इन्वेस्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो interest rate offered is subject to periodic change. As we saw, every quarter this interest rate is revised by the Government of India. So interest is compounded on an annual basis, but it is paid only at the time of maturity. Interest compounding का मतलब होता है कि ब्याज पे ब्याज जो लगना शुरू होगा, interest on interest will be compounded annually, but it is paid only at the time of maturity. Following are the key eligibility criteria for purchasing National Saving Certificate investments. All resident Indians are eligible to invest in NSCs. Non-resident Indians cannot purchase new NSCs. However, in case of resident subscribers of NSC becoming NRI prior to maturity of certificates, such NSCs can be held till maturity. Trusts and Hindu undivided family cannot make NSC investments. Karta of Hindu undivided family. Karta of Hindu undivided family means the leader of Hindu undivided family. अब Hindu undivided family क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जॉइंट फैमिली कल्चर होने के चलते ये हिंदुइज्म में खासकर ये देखा जाता है कि एक भाई, दूसरा भाई और तीसरा भाई, तीनों चारों भाई मिलके जब एक किराने की दुकान या एक बिजनेस चलाते हैं तो उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है। उनमें से जो बड़ा भाई है या फिर जो फैमिली के ग्रैंडफादर हैं या जो फैमिली में फादर हैं वो उसके कर्ता होते हैं, दैट इज द लीडर, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, इट इज अ गवर्नमेंट सपोर्टेड सेविंग स्कीम। ये बिजनेस कोई भी हो सकता है, राशन की दुकान हो सकती है या फिर यू कैन से कुछ भी बनाना, एक फैक्ट्री भी हो सकती है छोटी, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वे में चल रही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंडियन लीगल कमर्शियल लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर टैक्स पर्पसेस। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इट इज अ गवर्नमेंट सपोर्टेड सेविंग स्कीम। It is open to everyone, employed, self-employed, unemployed, or even retired. It is not mandatory and everyone can contribute any amount to the PPF subject to a minimum of rupees 500 and a maximum of rupees 1.5 lakh per year. It has a fixed return which is set by the government every quarter. फिक्स्ड रिटर्न इसमें रहती है जो कि गवर्नमेंट हर क्वार्टर पे करती है। वन कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस और मोस्ट मेजर बैंक्स। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट इज रिव्यूड एवरी क्वार्टर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट हर क्वार्टर रिव्यू किया जाता है, तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। देन एलिजिबिलिटी, रेजिडेंट इंडियन, रिटर्न्स आर गारंटीड। Eligibility, only the resident Indians can purchase this. Partial withdrawal is available. Yes, partial withdrawal is available. Then loans against PPF. अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट 75% लोन्स बोरोइंग लिमिट जो है अलाउ कर दी है। क्यों अलाउ कर दी है? बिकॉज
Why it has been allowed? So that government can, so that people in times of distress like this, they can borrow the money if they need. Loans against PPF available from 3rd year to 6th year. Then contribution amount from 500 rupees to 1.5 lakh per year. अगर आप 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो जैसा मैंने पहले एग्जांपल में बताया 10 लाख रुपीस में से 1.5 लाख माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 10 lakh hai. If income is 10 lakh only then, if income is 12 lakh, then you can invest 1.5 lakh. On the rest of the amount, on the remaining amount, you would have to pay income tax. That is why the people who are employees, they get this amount deducted so that they need not pay the tax. अब जैसे कि इसमें effective rate of interest कम भी हो गया है 5.5% हो गया है लेकिन द फैक्ट दैट इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो ये अपने आप में एक सेविंग है. लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि इंटरेस्ट रेट बैंक की फिक्स डिपॉजिट से कम रहता है और पैसा जो है 5 years के लिए लॉक इन हो जाता है. लॉक इन मतलब आप उस पैसे को ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में विड्रॉ नहीं कर पाते. विड्रॉ कर भी पाओगे तो 3 years के बाद कर पाओगे. तो ये सब इसके फीचर्स रहते हैं. रिटर्न्स दे आर गारंटीड बिकॉज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है. देन लॉक इन पीरियड 15 years का भी हो सकता है 5 years का भी हो सकता है. डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी अगर आपको डिपॉजिट करना है तो अप टू 12 डिपॉजिट्स इन अ ईयर आप इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कर सकते हैं. टैक्स ट्रीटमेंट दे आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो दिस इज द रेस्ट ऑफ द डिटेल हियर. पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.9% है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पैसा डिपॉजिट कर सकता है लेकिन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आपको किसी कंपनी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, आप जिसके एम्प्लॉय हैं, एक पर्सन ए है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे ये पैसा डिडक्ट करेगी. तो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है, इसमें कम. क्योंकि पब्लिक जो है, अगर कोई बिजनेसमैन भी है वो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकता है. नाउ एलिजिबिलिटी एनी इंडियन एक्सेप्ट फॉर NRI इंक्लूडिंग it includes the students, self-employed, employees or retired persons. Now contribution is tax deductible. इसीलिए लोग, क्योंकि इसमें जमा किया गया पैसा, अगर किसी बिजनेसमैन की इनकम 50 लाख है तो वो भी इसमें अगर 1.5 लाख रुपए तक जो पैसे जमा करेंगे उस पे उनको टैक्स नहीं लगेगा. तो इसलिए रिमेनिंग 48.5 लाख रुपीस पे टैक्स लगेगा क्योंकि ये 80C के अंडर एलिजिबल मानी जाती है. कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्फ और पेरेंट इन केस ऑफ अ माइनर. कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कौन पैसे फंड में जमा कराएगा? जो पर्सन है जिसके नाम पे अकाउंट है वो खुद से. देन बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. टैक्स बेनिफिट contribution is tax deductible, maturity amount is tax free only on completion of 5 years. Governing Act, Government Savings Bank Act 1873, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. National Small Savings Fund is the public account of India that was established in 1999. So we have done the threadbare analysis of this. ये बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 283 के अंडर ये नेशनल सेविंग स्कीम जो है ये लागू करी थी ताकि नेशनल सेविंग्स जो सिटीजन्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को यूज़ किया जाएगा नेशनल पर्पस के लिए. जैसे कि हम इसका एक और वेरिएंट देखते हैं, किसान विकास पत्रास. तो ये उससे कुछ मिलता जुलता है, राइट. पोस्टल डिपॉजिट जो लोग करते हैं बढ़ चढ़ के, उनमें लगाया गया पैसा देश की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए, आर्मी मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज किया जाता है. क्लियर. नाउ US क्रूड ऑफ लोज एज ट्रम्प पुतिन अग्री फॉर एनर्जी टॉक्स. ऑयल मार्केट्स के लिए ये एक दोहरी मार है, डबल वैमी है. In the light of coronavirus outbreak, prices are already declining because no production is happening, and then Saudi and Russian race चल रही है कि कौन क्रूड ऑयल मार्केट का ज़्यादा शेयर एक्वायर कर पाएगा. सऊदी अरेबिया ने रशिया के सामने ये प्रपोजल रखा था ओपेक के अंडर, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ऑयल और पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया जा सके, और एक कार्टेल बनाया गया है ओपेक.
जो कि प्राइसेस डिसाइड करता है कि कितने प्राइस पे ये क्रूड ऑयल बेचा जाएगा। रशिया ने उसमें सऊदी अरेबिया ने पिछले दिनों ये प्रपोजल रखा था कोरोना वायरस से पहले कि अगर ऑयल सप्लाई में कटौती की जाएगी तो क्या होगा कि प्राइस जो है पर बैरल, डॉलर पर बैरल, वो इंक्रीज हो जाएगा। रशिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। रशिया इज अ पार्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विच इंक्लूड सऊदी अरेबिया, ओमन, गल्फ, यूएई की सारी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज जो हैं ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। ओपेक क्या करता है कि सप्लाई कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल ये कंट्रीज सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती है ताकि एक बेटर प्राइस इन्हें मिल सके। रशिया मार्केट एक्वायर करना चाहता है और सऊदी अरेबिया भी मार्केट एक्वायर करना चाहता है, बट रशिया सऊदी अरेबिया लेड ओपेक में नहीं फंसता। अब क्या हुआ है, अब रिसेंटली ऑयल प्राइसेस स्टेडीड विद द यूएस क्रूड बेंचमार्क क्लाइंबिंग ऑफ 18-year lows after US president and Russian counterpart agreed to talks on stabilizing energy markets। दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स ने ये एक फॉर्मल इनफॉर्मल अग्रीमेंट किया है कि they would agree on the talks to stabilize the energy markets। However, gains were capped। इससे जो फायदा होना था इंडिया जैसी कंट्रीज को, वो गेन कैप था क्योंकि ग्लोबल डिमांड कॉन्टिन्यूज टू बी स्लैम्ड बाय ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस, कार्गो रिस्ट्रिक्शंस। अब इसका जो गेन इंडिया को हो सकता है, यूएसए और रशिया के बीच में डील होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे। एक इनफॉर्मल डील है ये, लेकिन अब इसको अगर आगे ले जाया जाता और कोरोना वायरस नहीं होता तो शायद इंडिया इसका बेनिफिट ले पाता। तो क्रूड ऑयल, आज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस क्रूड ऑयल के, या फिर हम जो देखते हैं वेरिएंट्स हैं वॉशिंगटन या फिर ब्रेंट क्रूड जिसे कहा जाता है, इन वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है? ब्रेंट क्रूड ज़्यादा अच्छा है या फिर whether Brent crude is good or Washington crude is good, and what other indices are there? ये क्रूड के जो इंडेक्सेस हैं कौन और कितने वेरिएंट्स हैं इसके, ये आपको बताना है। Why am I asking? 2013 में this question was asked in the prelims or mains। I think this was in mains 2013 जब सी रंगाराजन कमेटी लगाई गई थी to devise the formula for crude oil pricing in India। सी रंगाराजन कमेटी was appointed। तो जब कभी ऐसा होता है कि कोई कमेटी अपॉइंट करी जाती है या ऑयल प्राइसेस एकदम स्टीपली डिक्लाइन होने लगते हैं कोरोना वायरस के चलते, या फिर वॉशिंगटन क्रूड, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है यूएस क्रूड बेंचमार्क, तो जब कोई स्पेसिफिक क्रूड बेंचमार्क की बात होती है, ये कहा जाए कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं, वॉशिंगटन क्रूड के नहीं गिर रहे, या वॉशिंगटन क्रूड बेंचमार्क के प्राइसेस गिर रहे हैं और ब्रेंट क्रूड के नहीं गिर रहे, तब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्रेंट क्रूड में और वॉशिंगटन क्रूड में क्या डिफरेंस है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्रैश्ड बाय अबाउट 31%, the biggest fall since 1991 Gulf War। The fall in prices came after disintegration of OPEC Plus alliance। OPEC Plus made up of OPEC plus other producers including Russia। So this answers your question that Russia is not an official member of OPEC, but Russia supports OPEC whenever it suits Russian interests। तो जब रशियन इंटरेस्ट को ये सूट करता है तो रशिया ओपेक को सपोर्ट करता है। सो दिस ट्रिगर्ड एन ऑल आउट प्राइस वॉर। रशिया ने इसमें मना कर दिया कि हम इसमें ओपेक प्लस का डिसइंटीग्रेशन हुआ कि हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया ये कह रहा था कि बेटर प्राइस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्रूड ऑयल सप्लाई में, प्रोडक्शन में, एक्सट्रैक्शन में कटौती कर देते हैं, लेकिन रशिया ने उसे अग्री नहीं किया। इस वजह से क्रूड प्राइसेस 31% जो हैं गिर गए। देन in response to it, Saudi Arabia has threatened to drive the prices to such a low point that Russia will be forced back to negotiating table। अब सऊदी अरेबिया जानबूझ के ऑयल की प्रोडक्शन इतनी बढ़ा रहा है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो लार्जली ऑयल प्राइस पे डिपेंड करती है। रशियन इकोनॉमी में और कुछ नहीं होता, राइट, ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से उनकी ये कोशिश है कि रशियन इकोनॉमी का जो जीडीपी कहाँ से आता है, 80% ऑफ द जीडीपी ऑफ रशिया कम्स फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज लाइक गैस विच इट सप्लाइज टू यूरोपियन यूनियन। अब जब ये गैस एक्सेट्रा खत्म हो जाएगी तो रशिया काफ़ी वल्नरेबल हो जाएगा। अभी के लिए
रशियन इकोनॉमी पे दबाव डालने के लिए सऊदी अरेबिया ने जानबूझ के क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने गिरा दिए कि रशिया खुद ब खुद इस नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और प्राइस वॉर को ख़त्म किया जा सके, और दोनों कंट्रीज या दोनों साइड्स मिलके, सऊदी अरेबिया लेड ओपेक एंड दूसरी साइड रशिया, इस वे में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करें कि इन दोनों को फ़ायदा हो, ना कि बाकी की कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप आज ये बताओगे कि एशियन प्रीमियम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एशियन प्रीमियम? प्लीज आंसर। देन background of the price war: in 2014-15 oil prices had crashed. In order to sustain the oil exporting economies, Russia and Saudi Arabia had held up oil prices by cutting production. जानबूझ के प्रोडक्शन में कटौती की गई. However, Russia was facing issues on its energy front due to the US shale oil industry and sanctions imposed by the United States and European Union against its energy industry. Thus, Russia decided to unilaterally adopt an alternative strategy of increasing production and रशिया ने क्या किया? क्योंकि सैंक्शंस लगाई गई थी रशिया के ऑयल इंडस्ट्री पे बिकॉज ऑफ कैन एनीवन आंसर? बिकॉज ऑफ यूक्रेन इशू. ओके, यूक्रेन में जो प्रोविंस है, यूक्रेन का एक प्रोविंस एक्वायर किया गया था. कौन सा प्रोविंस है जो 2014 में रशिया ने एक्वायर किया था? उसके बाद रशिया पे ये सैंक्शंस लगा दी यूरोपियन यूनियन, और यूएसए ने कह दिया कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे. इस वजह से रशिया डिसाइडेड टू यूनिलैटरली अडॉप्ट एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ड्राइविंग डाउन द प्राइसेस, जो कि ओपेक्स प्लस के खिलाफ था. और ओपेक्स प्लस इस वजह से डिसइंटीग्रेट होने के कगार पे आ गया. इसमें रशिया की वजह से बाकी की मेंबर कंट्रीज भी अलग थलग होने लगी. क्रॉस पर्पसेस में ये लोग काम करने लगे. कोई ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था तो कोई कम. सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द प्राइस वॉर, क्रूड प्राइस वॉर. इसका फायदा इंडिया और चाइनीज इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि इंडिया क्या चाहता है? क्रूड ऑयल प्राइस अगर लो रहेगा, और ये इंडिया का ग्रोथ फेज है, इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, चाइना इज ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली. अब अगर ऐसे फेज में पर बैरल ऑफ क्रूड ऑयल अगर हमें डॉलर पर बैरल कम देना पड़ेगा, तो ये इंडिया के लिए एक फ़ायदे का सिचुएशन है. इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वी वांट दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस शुड रिमेन स्टेबल. India imports more than 80% of its oil needs. The price crash offers a breather on the macroeconomic front. अब कोविड के चलते, कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट का डोमेस्टिकली फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक लिमिट में रहेगा ड्यू टू रिड्यूस्ड दिस क्रूड ऑयल प्राइसेस, देन इट इज लाइक अ ब्रीदर. एक राहत की सांस है ये गवर्नमेंट के लिए. देन बाकी की चीजें you will be able to understand. So coming to the next part, polity and governance. Officials of Tablighi Jamaat charged with defying restrictions. तो over 400 people with COVID-19 symptoms hospitalized. इसमें जो लोग यहाँ पे गैदर हुए थे उसमें से 400 लोग आप देखेंगे जिनको कोरोना वायरस पाया गया है. 1000 लोगों को क्वारंटीन करने की बात करी जा रही है कि 1000 से ज़्यादा लोग थे इस जमात में जो कि ऑर्गेनाइज की गई, बावजूद इसके कि एपिडेमिक एक्ट वाज इन फोर्स इन न्यू दिल्ली. इस वजह से कोरोना वायरस ये लोग शायद और पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ना स्प्रेड करें, इसलिए इनको क्वारंटीन किया जा रहा है, इनको आइसोलेटेड किया जा रहा है. और इनके साथ के जो मरीज हैं, आप देखोगे कि इनके साथ जो लोग खड़े हैं, ये लोग जो डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी इनको ट्रीट कर रही है, और बाकी के लोगों को टेस्ट किया जा रहा है और क्वारंटीन किया जाएगा. देन with at least 24 of its occupants testing positive for the novel coronavirus, an Islamic center in the national capital of Delhi has turned out to be the latest hotspot of coronavirus. More than 400 people with symptoms were admitted to different hospitals and over 1100 shifted to government-run quarantine facilities. Hundreds of others who returned home after staying at the center over last fortnight have carried the virus to
several states. Authorities are fearful about this. So this had to be avoided. This should have been avoided. But लोग जो हैं समझते नहीं हैं, तो सरकार किस हद तक काम कर सकती है. Section 3 of Epidemic Disease Act 1897 read with sections 269, 270, 271 and 120B of the IPC for violation of government directions in respect of restrictions on gathering and safety measures, including physical distancing. No transport available. The center said many participants could not leave as all the means of transport came to an abrupt halt on March 24. Then, in Andaman and Nicobar, 6 people who returned from the same event had tested positive. Assam government has asked people to voluntarily report themselves if they were present at the congregation. इसी से जुड़ा हमने editorial भी देखा. Around 300 people from the state attended the event. 300 people from the Assam state, they attended this जमात, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे. Now, exponential increase. The number of coronavirus cases in the world crossed 8 lakh. The infections in India breached 1500 mark on Tuesday. तो गवर्नमेंट की ये जो स्टेप था 21 डेज का क्वारंटीन पीरियड और लॉकडाउन पीरियड, ये बहुत सही डायरेक्शन में है ताकि हम इस कोरोना वायरस को हॉल्ट कर सकें. इटली या बाकी की कंट्रीज की तरह ये हमारी कंट्री में भी हाथ से बाहर ये ना चला जाए. Now, Epidemic Disease Act के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं because it has been in news for last 15-20 days now. Epidemic Diseases Act was introduced by the British to tackle the epidemic of bubonic plague. Bubonic plague के नाम पे किन किन को अरेस्ट किया गया था, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे. Very prominent leaders from Maharashtra were arrested under this. This law aims to provide for better prevention of the spread of dangerous epidemic diseases. So, Section 2A of the Act empowers the central government to take steps to prevent the spread of an epidemic. It allows the government to inspect any ship arriving or leaving any post and the power to detain any person intending to sail or arriving in the country. So, Section 3 of this Act provides for penalties. अगर कोई इस एक्ट को डिसओबे करता है तो सेक्शन 3 में इसकी पेनल्टीज दी गई हैं. And these are according to section 188 of IPC. Disobedience to order duly promulgated by एक ऑर्डर जो पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, SDM हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या फिर कोई और फंक्शनरी, अगर उन्होंने ऑर्डर इशू किया है और उसकी आप अवमानना करते हैं या उल्लंघना करते हैं तो सेक्शन 188 के तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है. Section 4 gives legal protection to the implementing officers acting under the act. Implementing officer किसी भी हद तक जा सकता है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते दौरान. किसी को अरेस्ट करना या किसी को नज़रबंद करना या फिर किसी को जबरन ट्रांसपोर्ट करना एक एरिया से दूसरी तरफ. Epidemics Disease Act is routinely enforced across the country for dealing with outbreaks of disease such as swine flu, dengue, etc. So this is factual information. Now, 3 quasi-subspecies of virus in circulation. Quasi-subspecies, ICMR का ये कहना है, a mixture of 3 quasi-subspecies of SARS-CoV-2 is in circulation. Quasi-subspecies of SARS coronavirus 2 is in circulation in India. These imported variants showed no differences from how they behaved in the place of origin. Scientists are yet to classify a SARS-CoV-2 variant as an Indian strain. इसका इंडियन स्ट्रेन अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया है. ICMR ने ये जानकारी दी मीडिया को. India's COVID-19 cases were mainly from people with travel history and their immediate contacts. Okay, which is to say that this virus was brought in from outside. India is not seeing any variation from what is being seen on how this strain is behaving around the world. अगर ये इंडियन होता, अगर इंडियन स्ट्रेन इसमें डिफरेंट होता, यूनिक होता, तो इंडिया में जो अफेक्टेड लोग हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते
जो बाकी के वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, जो बाकी के वर्ल्ड में लोग इससे अफेक्टेड है, उनसे थोड़ा डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं इंडिया में, और ये स्ट्रेन बाकी के लोगों में, इटली एटसेट्रा में भी सेम वे में बिहेव कर रहा है जैसा कि वो इंडिया में बिहेव कर रहा है जिन लोगों में ये पाया गया है. तो देयर इज नो डिफरेंस इन दी सिवियरिटी. तो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इंडिजिनस डायग्नोस्टिक किट्स जो डेवलप करी गई हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्टिंग किट्स वाज स्टिल एन इशू. ICMR ने ये बात एडमिट की है कि हाँ, मास्क और बाकी सब चीज़ें जो है कम मात्रा में प्रोवाइड की जा रही हैं. मास्क शुड नॉट बी यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली. मास्क को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने की जरूरत नहीं है. इंडिया वुड बी एबल टू मेक इंडिजिनस डायग्नोस्टिक किट्स विद इन next 1 month or 2. So far, 42,000 samples have been tested in India. Of these, 4,346 were tested. This is 36% of the total capacity. 47 private labs were allowed to test for COVID-19 and they conducted 399 tests on 30th March. The Health Ministry said that even a single case was a hotspot, especially when हॉटस्पॉट अभी उन एरियाज को कहा जा रहा है जहां पे कि ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है सिंगल केस भी जहां पे उसे भी हॉटस्पॉट माना जाए. देन ट्रीट माइग्रेंट्स ह्यूमेनली. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनको इंसानियत के वे से ट्रीट किया जाए. माइग्रेंट लेबरर्स को इनके लिए कैंप्स सेटअप करे जाएं. इनको कुछ ऐसा नहीं कि जैसे कि गलत वे से, जैसे कि ये भारत के नागरिक ही नहीं है, वैसे उस तरीके से इन्हें ट्रीट ना किया जाए. सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द पुलिस एंड अथॉरिटीज टू ट्रीट माइग्रेंट वर्कर्स journeying home in the fear of COVID-19 in a humane manner. Supreme Court said we expect those concerned, police authorities and others जो भी इस मैटर से जुड़े हैं, to appreciate the trepidation of the poor men, women and children and treat them with kindness. The anxiety and fear of the migrants should be understood by the police and other authorities. तो काफ़ी पुलिस सेंसिटाइजेशन में मीडिया की जो हम क्लिपिंग्स देख रहे हैं, न्यूज़ क्लिपिंग्स टीवी मीडिया की, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज शुड एंडेवर टू एंगेज वॉलंटियर्स along with police to supervise the welfare activities for the migrants. Authentic information. Court directed the government represented by the Solicitor General. सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा to set up an expert committee and a dedicated portal within 24 hours to disseminate authentic information about the virus and stop the spread of fake news. A status report filed by Union Ministry of Home Affairs said that the propagation of the deliberate or inadvertent false information was the single most unimaginable hindrance. False information के लिए रूमर मॉन्जरिंग को बंद करने के लिए, रूमर मॉन्जरिंग पे एक लगाम कसने के लिए यहाँ पे ये कहा कि होम मिनिस्ट्री को पीरियोडिक अपडेट्स, बुलेटिन्स इस पे इशू करने चाहिए, या फिर सरकार को एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, उन्हीं के थ्रू ही जानकारी मिलनी चाहिए, राइट. सो दिस इज द बेंच आस्क्ड द गवर्नमेंट टू फॉलो अप ऑन पर्सन्स आइडेंटिफाइड एज infected and quarantined. Then government said that the lockdown was necessary to stop the spread of infection and all the people found walking back were shifted to the nearest shelters. CJI said that section 188, disobedience to order given by a public servant of the IPC, makes it a penal offense to disobey orders made by the government authorities. तो जिन लोगों को नहीं पता, जो पीड़ित हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर ये सारे सेक्शंस लगाने के लिए शायद नहीं है. जो लोग जानबूझ के इसकी उल्लंघना करते हैं, कारों में घूम रहे हैं, कोरोना हॉलीडेज मना रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है, राइट. तो कोर्ट ऑन March 30 sought a report from the government on the steps taken about the large scale movement of workers. क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं? The order came on the petitions by some advocates for a direction to the government to redress the heart-wrenching and inhuman plight of thousands of migrant workers walking back to their villages from the cities without essentials. तो SC upholds the right to discuss COVID-19. मीडिया के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे आप GS मेंस पेपर 3 के लिए रोल ऑफ मीडिया एज अ टॉपिक भी जॉट डाउन कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके कि रूमर मॉन्जरिंग चल रही है मीडिया पे, कोरोना वायरस के चलते सारा दिन ये जो चीज़ें चल रही हैं,
even as it directed. सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को ये कहा to refer to and publish the official version of the developments in order to avoid inaccuracies and large scale panic. जनता में जो है असमंजस की स्थिति ना क्रिएट की जाए, पैनिक ना क्रिएट किया जाए लोगों में. ऑफिशियल वर्जन के लिए सरकार को भी ये कहा गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ डेली बुलेटिन ऑन कोविड-19 डेवलपमेंट्स थ्रू ऑल मीडिया एवेन्यूज in next 24 hours. The bench was responding to a request from the central government that media outlets in the larger interest of justice should only publish or telecast anything on COVID-19 after ascertaining the factual position from the government. Ministry of Home Affairs की रिपोर्ट ने कंट्री में ये एक्सप्लेन किया कि that any deliberate or inaccurate reporting by the media, particularly the web portals, websites, had a serious and inevitable potential of causing panic in larger section of society. Ministry said any panic reaction in the middle of this unprecedented situation based on such false reporting would harm the entire nation. Creating panic is also a criminal offence under Disaster Management Act. Note down for prelims as well as mains. Creating panic is a criminal offence under Disaster Management Act. But the court took a view balancing free press and the need to avoid panic in society. The court ordered we expect the media to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. So guys, I would like to tell you at this juncture कि जो लोगों को नहीं पता about the special classes, about other activities, PDF, etc. So you have to send a message on WhatsApp typing alerts. Simply you have to type ALERTS and send it on 95828 68080. 95828 68080 पे you have to send this message. Clear? So you will be added to the Telegram channel so that you stay updated about the activities on Unacademy Plus by me, my special classes, the daily news analysis alerts in the morning. And I would suggest all of you to be regular with the daily news analysis. We'll be doing the analysis in a manner that it helps in your prelims preparation as well. Deliberate or inadvertent fake news and material capable of causing a serious panic in the minds of public is found to be the single most unmanageable hindrance in management of this challenge. Now, ministry took proactive, preemptive and timely action 13 days before even WHO declared COVID-19 a public health emergency of international concern. Andaman and Nicobar tribes under heavy security. So, आज I will ask you a question which you all of you must answer. If you are a part of this daily news analysis, if you consider yourself, please answer these questions. अंडमान एंड निकोबार में कितने टाइप के ट्राइब्स पाए जाते हैं? कौन सी ट्राइबल जनजातियां हैं जो अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं? After 9 persons who visited Delhi from the congregation जो कि जमात लगाई गई थी, तो उसमें से 9 लोग जो अंडमान एंड निकोबार में पाए गए हैं. अंडमान एंड निकोबार authorities have stepped up the security near the areas in the island that are inhabited by indigenous tribes, ताकि ये ट्राइबल जनजातियों में ना फैल जाए, क्योंकि फिर उनको जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं है ट्राइब्स, अगर उनमें ये फैल गया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि वो लोग मेडिसिन एक्सेट्रा में विश्वास नहीं रखते और ना ही फिर वहाँ पे मास्क दिए जा सकते हैं ना कुछ, तो इसीलिए सिक्योरिटी को स्टेप अप किया गया है. तो ग्रॉस इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कॉन्ग्रीगेशन नहीं होना चाहिए था. नाउ यू कैन आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. पोर्ट ब्लेयर एक्सेट्रा, बैरन आइलैंड. This is the time, through this news clipping, we can revise these islands and geographical features of Andaman and Nicobar. Then, out of the 10 people, this is all factual now. इस पे हम नहीं डिस्कस करेंगे. आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ट्राइब्स का आंसर जरूर कीजिएगा. Then, study shows middle-age COVID mortality risk. Middle age, according to a study, middle-aged people and not just the elderly have a dramatically higher risk of dying or developing serious illness from COVID-19. Researchers analyzed more than 3,600 confirmed COVID-19 cases as well as data from hundreds of passengers.
repatriated from Wuhan. They found that age was a key determining factor in serious infections, with nearly 1 in 5 over 80s requiring hospitalization, compared to 1% among the people under 30. तो स्टडी का ये कहना है मिडिल एज्ड पीपल आर at risk more than the elderly. Okay, so taking into account the estimates of number of cases that may not have been clinically confirmed, जैसे कि जिसमें mild symptoms पाए जा रहे हैं, data showed that hospitalization of rate of patients in their 50s was 8.2%, related to those patients which are showing some symptoms which are close to कोरोना वायरस, जो लोग कोरोना वायरस जैसे सिम्टम शो कर रहे हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस सिर्फ एल्डरली लोगों को हो. दिस इज जस्ट टू कीप दी रूमर्स एट बे एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि ये एल्डरली लोग जो हैं सिर्फ उनको हो रहा है, इसलिए यूथ पीपल कैन गो आउट, रोम अराउंड, इसीलिए ये किया जा रहा है. देन यूएस आउटलाइंस प्लान फॉर ट्रांजिशन इन वेनेजुएला, सैंक्शंस रिलीफ. यूएसए ने वेनेजुएला पे जो सैंक्शंस लगाई थी उनको लिफ्ट कर दिया गया. अब इसे समझते हैं. यूएसए इज प्रिपेयर टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला इन सपोर्ट ऑफ अ न्यू प्रपोजल टू फॉर्म अ ट्रांजिशनल government representing the allies of both Nicolas Maduro and the opposition leader Juan Guaido. Then, plan which will be presented by the US Secretary of State echoes a proposal made over the weekend by Guaido जो ओपोजिशन लीडर है वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाई गई थी. अब यूएसए ये कह रहा है कि ये जो सोशलिस्टिक वे में चलने वाली कंट्री है वेनेजुएला, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई थी उनको लिफ्ट किया जाएगा, उन सैंक्शंस को हटाया जाएगा ताकि वेनेजुएला अब अपनी डीलिंग्स यूएसए की कंपनीज के साथ में कर सके. नाउ the plan shows that how growing concerns about COVID-19 which threatens to overwhelm South American countries. Venezuela में भी South American countries already collapsed health system and crippled economy. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना वायरस ने वो काम ऑलरेडी कर दिया है जो कि यूएसए की सैंक्शंस करती, कि वेनेजुएला के लिए दिक्कत क्रिएट करने का काम. इसी के चलते यूएसए ने ये कहा है कि मिलिट्री को जो है पुल आउट किया जाएगा वेनेजुएला से अपार्ट फ्रॉम मडूरो. तो ये सब चीज़ें जो रिलैक्सेशन करने की बात करी गई है ये एक अच्छी चीज़ है. व्हाट्स बीइंग डब्ड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क फॉर वेनेजुएला, यूएसए में जो फ्रेमवर्क है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके सामने इट वुड रिक्वायर मडूरो एंड गाइडो टू स्टेप असाइड एंड हैंड पावर टू अ 5-member काउंसिल ऑफ स्टेट. यानी कि मडूरो को भी ये कहा जा रहा है कि आप भी रिज़ाइन करें, और जुआन गुआइडो जो कि ओपोज कर रहे हैं निकोलास मडूरो के रेजिम को, उनको भी कहा जा रहा है आप भी थोड़ा ठंडे हो जाएं और 5-member काउंसिल ऑफ स्टेट को ये सारी पावर दे दी जाए until the presidential and parliamentary elections can be held in the late 2020s, according to a written summary of the proposal. यूएसए ने प्लान बनाया वेनेजुएला के लिए. यूएसए और वेनेजुएला में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. वेनेजुएला और यहाँ की कुछ और कंट्रीज सोशलिस्टिक पैटर्न में इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं, बट वेनेजुएला क्योंकि ऑयल रिच है, क्रूड ऑयल है यहाँ पे, यूएसए की काफ़ी कंपनीज यहाँ पे दखल अंदाजी कर रही हैं. They want to extract crude oil of Venezuela so that they can make money out of all this affair. इसीलिए वेनेजुएला के ऊपर किसी एक नहीं तो दूसरे बहाने से कि आपकी कंट्री में ओपोजिशन है या फिर गवर्नमेंट के लैप्सेस को दिखा के वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी गलतियों को दिखा के ओपोजिशन लीडर को इरेक्ट किया जा रहा है, प्रॉप अप किया जा रहा है, ताकि ओपोजिशन लीडर निकोलास मेडूरा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो क्योंकि जुआन गुआइडो इंडिजिनस लीडर हैं वेनेजुएला के, तो उनकी बात को जनता अच्छे से सुनेगी. और जब निकोलास मेडूरो की सरकार चली जाएगी या किसी 5-member काउंसिल के हाथ में जो पावर दी जाएगी, वो यूएसए की कंपनीज को एक ब्लैंक चेक दे सके वेनेजुएला से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. यूएसए बाकी की कंट्रीज में भी इसी तरह से मेडल करते हुए आया है अंदरूनी मामलों में, इंटरनल मैटर्स में बाकी कंट्रीज के. तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चलते यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई थी. ऐसी ही सैंक्शंस क्यूबा के ऊपर, रशिया के ऊपर लगाई गई हैं, राइट. सैंक्शंस, द काउंसिल वुड नीड टू बी फंक्शनिंग एंड ऑल फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम क्यूबा और रशिया
would need to leave the country. अब रशिया ने 2017 में वेनेजुएला के साथ में एक डील साइन किया था जिसके तहत वेनेजुएला ने रशिया को गैस सप्लाई करने का एक समझौता साइन किया था. यूएसए को उससे भी दिक्कत है, इसलिए बोला जा रहा है कि रशियन अथॉरिटीज भी यहाँ से पहले जाएं और तब ये डील जो है फ्रक्टिफाई होगी और तभी सैंक्शंस हटाई जा सकेंगी. क्योंकि रशियन इंडस्ट्री वो ऑयल ले जाएगी तो फिर यूएसए तो तालियां बजाते रह जाएगा. इसीलिए ये ह्यूमन राइट्स का हवाला देके खुद ही ह्यूमन राइट्स वॉयलेट करने वाली सैंक्शंस लगाना, ये यूएसए की डिप्लोमेसी काफ़ी कंट्रीज़ में रही है. चाहे हम इराक वॉर में देखें, ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन के पास में केमिकल वेपन्स हैं, ऐसा यूएसए पहले भी करता आया है. In 2019, USA had announced sanctions on Venezuela's oil trade amid growing efforts by the opposition to unseat the socialist president Maduro. In this scenario, Venezuela had turned to India to sell its crude oil, and India wanted to purchase crude oil because 2019 में इंडिया जिस कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ईरान, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाई गई. So Venezuela has been caught in a downward spiral for years, with growing political discontent further fueled by skyrocketing hyperinflation. Venezuela में 2000% का इन्फ्लेशन देखा गया है कुछ सालों में. सोशलिस्टिक लीडर्स जो होते हैं, जैसे कि वेनेजुएला ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नाम समिट में. फर्स्ट नाम समिट में भी वेनेजुएलन लीडर्स थे, क्यूबा, वेनेजुएला एटसेट्रा. और आपको ये बताना है कि लास्ट जो नाम समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी और इंडिया से किस डिग्निटरी ने इसको अटेंड किया था. क्लियर. तो इस वजह से वेनेजुएला की इस इन्फ्लेशन का फ़ायदा उठाते हुए, इन्फ्लेशन क्यों हुई थी? क्योंकि वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाई गई और पॉलिटिकल अनरेस्ट के चलते भी इन्फ्लेशन बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पाई. तो मोर देन 30 लाख वेनेजुएलन्स हैव लेफ्ट कंट्री इन दी रिसेंट ईयर्स. और ये सब कुछ हम ये पूरी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो इकोनॉमिस्ट में या डिप्लोमैट मैगजीन में आते हैं उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यूएसए इस मैटर में बहुत डीपली इन्वॉल्व है. क्योंकि यूएसए ये चाहता है कि यूएसए की जो कंपनीज हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल मेकिंग एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज, उनको वेनेजुएला में हिस्सा मिले, रशिया या बाकी कंट्रीज को ना मिले. अब रशिया और वेनेजुएला में हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं बिकॉज ऑफ सोशलिस्टिक आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स. रशिया भी यूएसएसआर भी जो है सोशलॉजिकल सोशलिस्टिक पैटर्न में इकोनॉमी को चलाते हुए आ रहा था और वेनेजुएला भी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी चला रहा है. तो इसीलिए वेनेजुएला रशिया के साथ में ये ऑयल डील साइन कर रहा है, यूएसए के साथ में नहीं. और यूएसए ह्यूमन राइट्स का और पॉलिटिकल ओपोजिशन का हवाला देते हुए मडूरो, जो कि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी रखते हैं, उनको सस्पेंड करना चाहता है और कोई ऐसे कैपिटलिस्टिक मोरिंग्स वाले, आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स वाले प्रेसिडेंट को उनकी जगह पे इंस्टॉल करना चाहता है. ऐसा ही पहले अफ्रीकन कंट्रीज में भी किया गया है, ब्रिटिशर्स द्वारा, फ्रेंच द्वारा. लिबिया जैसी कंट्रीज में हम देखते हैं, या फिर बाकी की जो ट्यूनीशिया जैसी छोटी कंट्रीज हैं, उनमें इन वेस्टर्न पावर्स ने ऐसा ही किया है. तो दिस इज ऑल अबाउट वेनेजुएला. हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे. यू शुड बी नोइंग अबाउट द क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड यू, एंड वेनेजुएला वाज द मेंबर कंट्री इन नाम समिट एज वेल. Clear? So for the first or second time, Indian Prime Minister did not attend the summit and नाम summit in Venezuela. वेनेजुएला में ये समिट हुई थी. प्राइम मिनिस्टर, आमतौर पे ये हमारा एक ट्रेंड है कि प्राइम मिनिस्टर नाम समिट को अटेंड करते हैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम से. From the times of Jawaharlal Nehru, it is the trend, it is a settled thing that Prime Minister has been attending the NAM summit. But since it is Prime Minister Modi, and Prime Minister Modi does not believe in the Nehruvian institutions, be it in domestic arena or in the international arena. Nehru नाम से एलर्जी है, तो इसीलिए नाम से भी एलर्जी है. Right? So that is why this is the policy of government of India to be pro-America. कैपिटलिस्टिक हो गए हैं. हमारा जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज की तरफ, यूएसए की तरफ ज़्यादा जो है टिल्ट है, अगर हम इसका एनालिसिस देखें. इसीलिए अगर हम नाम समिट में इफ वी विल पार्टिसिपेट इन द नाम समिट, वी वुड एंड अप offending the capitalistic power USA. That is why we are maintaining a distance from other countries. But at the same time, we have been pragmatic enough.
We have been pragmatic enough that despite the sanctions or before the sanctions, we had signed an oil deal with Venezuela so that we can extract positive from USA. आफ्टर दीज टाइप ऑफ स्टेप्स बाय इंडिया कि वेनेजुएला के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उनका इम्पैक्ट नेगेट हो जाएगा, यूएसए ने वाशिंगटन क्रूड की लैंडिंग कॉस्ट के समेत इंडिया को सस्ते रेट पे क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए, ताकि इंडिया वेनेजुएला और ईरान से क्रूड ऑयल ना परचेज करे. To wean India away from Venezuelan oil and Iranian oil, USA gave an assurance to India that USA would be selling the Washington crude oil, Washington benchmark crude oil to India at a cost cheaper than the one purchased from Iran and Venezuela. So these things were in news. So India has been pragmatic also. हम लोग सिर्फ ideological नहीं है. प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी की एक अच्छी चीज़ भी है कि जहाँ पे इंडिया का बेनिफिट है हम उस तरफ टिल्ट हो जाते हैं, राइट. लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस में हिस्सा ना लेना जो हमारी कंट्री के पहले के प्राइम मिनिस्टर्स करते आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है हमारी पॉलिसी में कैपिटलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ या कैपिटलिस्टिक कंट्रीज की तरफ. नाउ कमिंग हियर, concerns with USA's role in Venezuela. US President Donald Trump officially recognized Juan Guaido as the legitimate president of Venezuela just minutes after the letter had said he would take over the executive powers. यानी कि किसी एक लीडर के खिलाफ किसी दूसरे लीडर को प्रॉप अप करना, right? Yes, this meeting was held in Argentina, Azerbaijan. उससे पहले की जो मीटिंग है वो इससे पहले की जो मीटिंग है वो वेनेजुएला में हुई थी, राइट. प्रशांत, यू कैन डाउनलोड दी कंपाइलेशंस फ्रॉम दी वेबसाइट www.jatinverma.org. पीटी रेकनर नाम से जो सीरीज लाई गई है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. क्लियर? PT reckoners from www.jatinverma.org. They are totally free of cost. Prelims compilations by my team have been uploaded on the website. Now, where do countries stand on Venezuela? तो कंट्रीज का क्या क्या स्टैंड है? EU has called for new elections, but some individual member countries have expressed their preferences. Then coming here, the status of India-Venezuela oil trade after sanctions. Squeezed by US sanctions that began on January 28, USA की sanctions की वजह से Venezuela had turned to India to sell its crude oil. India has been Venezuela's second largest customer after United States. Reliance is among PDVSA oil industry company main cash paying customers. वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री कंपनी है उसका कैश पेइंग कस्टमर है इंडिया की रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, राइट. तो ये वेनेजुएला के लिए एक अच्छा कस्टमर है इंडिया की कंपनी. While Nayara receives Venezuelan oil from one of its largest stakeholders, Russian oil giant रोसनेफ्ट. नयारा एक और कंपनी है जो कि वेनेजुएलन ऑयल रिफाइन होने के बाद या फिर क्रूड ऑयल के रूप में रशियन कंपनी रोसनेफ्ट से खरीदती है. रशियन कंपनीज का ये वेनेजुएला के साथ में जुड़ना यूएसए को पसंद नहीं है. यूएसए वांट्स वेनेजुएलन कंपनीज टू सेल क्रूड ऑयल टू US companies so that US companies can make profit out of it, and that is why इकोनॉमी को यदि जीतना है तो पॉलिटिक्स को हाथ में करना है. पॉलिटिक्स को हाथ में करना है तो जो इनकम्बेंट लीडर हैं उनके खिलाफ जनता को भड़काओ. जनता को उनके खिलाफ भड़काना है तो जो ओपोजिशन लीडर हैं उनको आप कुछ इस तरह रिकॉग्नाइज कर लो. डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली जुआन गुआइडो को इंटरनल मैटर्स में वेनेजुएला के दखल अंदाजी करते हुए रिकॉग्नाइज कर लिया. क्लियर? तो दिस इज इट. देन before the sanctions, Venezuelan oil company shipped over 5 lakh barrels per day to USA, followed by India at more than 3 lakh barrels per day. Since sanctions were announced, Venezuela's state-run oil company has loaded and exported 1.15 million barrels per day. So we have understood this dispute. 70 years of diplomatic relations between China and India. You can expect a special video. I may or may not be able to do it. तो ये एक सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर में आया है कि चाइना इंडिया के 70 years of diplomatic relation पे आप कमेंट करें. It may not be possible to deal with this lengthy article, right? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है.
काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को होलिस्टिकली प्रिपेयर करने के लिए यू कैन download the PDF of the daily news analysis from www.jatinverma.org. Then, present relations. Today's achievements of China-India relations embodied the great efforts of several generations of our two peoples. Then, China-India relations leading, transmitting, shaping, integrating in phases में बहुत अच्छे से आप इसे read कर सकते हैं, right? I will analyze it through the medium of some editorial analysis today. I'll try possibly. अभी के लिए आप ये कर सकते हो, right? Now, Indian President Ramnath Kovind and the Prime Minister Narendra Modi have both said that whole world is a family. तो ये सब चीजें कही गई थी. Then, coming to this part, the ancient Oriental wisdom is still full of vitality today. China and India have enough foresight and ability to join hands to realize dragon-elephant tango. तो ये सब पूरा historical context इसका इसमें cover किया गया है, right? PDF will be uploaded, don't worry. In next 1 hour, the PDF will be uploaded. So, in 2000, Indian President K.R. Narayanan visited China on the occasion of 50th anniversary. This you have to read yourselves, okay? तो आज के important news articles हमने already इसमें cover कर लिए आज के DNA में. 9th BRICS Summit में क्या हुआ था? Then G20 Summit Hangzhou में क्या हुआ है? ये सब चीजें हैं यहाँ पे. Clear? Facts and figures on China-India cooperation. Political and diplomatic relations. Regular contacts and exchanges are maintained between the leadership and specialized committees of two parliaments. This is their economy and trade. The Development Research Center of the State Council of China has held 4 rounds of dialogues with Niti Aayog of India, occupying 4 of the top 5 smartphone shipments in India. Top 5 स्मार्टफोन शिपमेंट्स जो इंडिया में आती हैं उसमें से 4 जो हैं चाइनीज हैं. चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन्स आर पॉपुलर विद इंडियन पीपल. तो ये सब चीज़ें काफ़ी लेंदी आर्टिकल है गाइज, इसीलिए लाइन बाय लाइन अगर हम इसमें जाएंगे तो इट विल टेक यू 2 hours. इट विल टेक मी 2 hours. टोटल DNA हो जाएगा आज. इसीलिए प्री मॉनसून क्रॉप कल्टिवेशन येट टू बिगिन. प्री मॉनसून sowing has not commenced in many places in Karnataka mainly due to shortage of laborers. कर्नाटका में लेबरर्स की शॉर्टेज की वजह से जो प्री मॉनसून सोइंग रहती है कल्टीवेशन के लिए वो नहीं हो पाई है. अगेन अ फैक्चुअल न्यूज. बिसाइड्स मेन क्रॉप्स, अब इसी के मीडियम से हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स कर्नाटका में ग्रो करी जाती हैं. रागी, मेज मेन क्रॉप्स हैं वहाँ पे जो ग्रो करी जाती हैं. फार्मर्स कल्टीवेट ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, and there is a concern whether the farmers will take up cultivation of these crops given the COVID situation. In a few places, sowing has been completed, but it has not even commenced in many places. So sowing has not been commenced. Now, if sowing is delayed, it will hurt the yield and overall productivity. People across the board were staying indoors and labor was in short supply. तो क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेनिफिट ऐसे टाइम में मिलेगा? नो, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं अगर ऐसे डिस्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे शायद ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आज आप रिवाइज करेंगे और इफ पॉसिबल इफ यू कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. और ये बताओगे, ये चेक करोगे कि रागी के लिए और मेज के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं और बाकी की कौन कौन सी साउथ इंडियन स्टेट्स में इसे ग्रो किया जाता है. ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम. Then the administration is appealing to farmers to continue with their agricultural activities while also staying safe. District administrations are working with the dealers to ensure there is enough supply of seeds and fertilizers. So this is there. Those who grow pre-summer crops normally let the people grow on their fields after harvesting the crops. जो लोग प्री समर क्रॉप्स ग्रो करते हैं नॉर्मली लेट द प्लांट्स ग्रो ऑन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. बट अभी क्योंकि लेबर की स्कैसिटी के चलते ये काम नहीं हो पा रहा है, राइट. देन impact of monsoon on Indian agriculture as a static topic you can revise from these PDF files. Okay, the slides in this PDF file you can revise from them. Then coming here, monsoon etc. का इसमें background है. So this was all in today's daily news analysis, guys. We have analyzed each and every issue in today's newspaper.
So thank you everyone. Bye bye. Thank you guys.